गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आप ICSE बोर्ड का क्लास 10th का चैप्टर कर लगे हाँ मोल कंसैप्ट एंड स्टोकियोमैट्री। मोल कंसैप्ट एंड स्टोकियोमैट्री देखियो इहदी इंट्रोडक्शन की आ, आपां किद्दां लास तक पकड़ बनाउणी आ भी बॉयल ला की आ चार्ल्स ला की आ। वैसे तो दो ही आ मे बी, पर आपां चार कोशिश करते अटैम्प्ट करदी बॉयल ला, चार्ल्स ला, एवागैड्रो ला, गे-लुसैक ला। ठीक है, एवागैड्रो होगा मे बी सारे ही होणगे, पर आप स्टार्टिंग के तो करनी आ बॉयल्स ला तो। पहलो इंट्रोडक्शन देखियो इहदी की आ। देखो आप 9th स्टैंडर्ड दे विच पढ़िया होना अंडर सिमिलर कंडीशंस। अंडर सिमिलर कंडीशंस all gases behave equally. Under similar conditions all gases behave equally. ਹੁਣ ਇਹ सिमिलर कंडीशंस ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੈਸਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਸਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਸਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆ? ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ। ਤਿੰਨ ਵੈਸਲਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੈਸਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕੋ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ 1 atm, ਜਿੱਥੇ ਵੋਲੀਅਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੈਸਲ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ? 1 ਲੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਵੀ 1 ਲੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਵੀ 1 ਲੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਵੀ 1 ਲੀਟਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 25 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 1 atm ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਵੋਲੀਅਮ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੈਸਿਸ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਦਲਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਗੈਸ ਲਾਸ ਦਾ। ਗੈਸ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਇਲ ਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਚਾਰਲਸ ਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੇ-ਲੁਸੈਕ ਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਵਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸੇਮ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਆਲ ਗੈਸਿਸ ਬਿਹੇਵ ਇਕੁਅਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨੋਟਸ ਬਣਾਇਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਮੋਲ ਕੰਸੈਪਟ ਐਂਡ ਸਟੋਕਿਓਮੈਟਰੀ। ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਮੋਲ ਕੰਸੈਪਟ ਐਂਡ ਸਟੋਕਿਓਮੈਟਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਲੀਅਮ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਵੋਲੀਅਮ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਜਿਹਦਾ 3 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੋਲੀਅਮ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। 1 ਕੈਪਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਗੈਸ ਲਾਸ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਗੈਸ ਲਾ। ਦੈਨ
then gas follow, gases follow special rules called गैस ला। जे तिन्ना विचों एक नूं भी कॉन्सटेंट करता तो फिर गैसिस ने की करनी वा फॉलो करने आ एक स्पैशल रूल नियम फॉलो करने जिन्हां नूं आपां कहीदा गैस लॉस। इत्थों अपनी स्टार्ट हो जानी गैस लॉस कहीदा। होर भी आपां याद रखना वा भी अमाउंट ऑफ गैस नूं आपां इत्थे की रखना वा फिक्स। जिद्दां देखो एक कंडीशन ते हैगी ही प्रैशर, एक हैगी ही वॉल्यूम, एक हैगी ही टैंपरेचर। पर जदों आपां गैस ला पढ़ने ना उदों एक चीज़ ध्यान च रखियो, अमाउंट ऑफ गैस कह लो जां कह लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर फिक्सड। इन्हां नूं आपां की रखना वा मस्ट बी फिक्सड कह दो जां भी इनू आपां पक्का फिक्स रखना ही रखना। ये चीज़ भी आपां दिमाग च रखीए, ठीक है। हुण सानू इन्ना पता लग गया भी जदों छोटियां क्लासां विच सानू दस्सिया जांदा ही भी गैसिस बिहेव करदियां इक्वली, वो क्यों दस्सिया जांदा ही? क्योंकि प्रैशर, वॉल्यूम, टैंपरेचर, नंबर ऑफ मोल्स आपां सारियां गैसिस ते की कर दिंने हुन्ने ही फिक्स। पर जेकर अज वो कहंदे पए आ भी तिन्नां विचों सिर्फ एक जाना फिक्स करो, फिर कुछ नियम सानू सिखाए जाणगे भी वो गैस ने की आ नवे नियम फॉलो करन लग पैणे। वो किहड़े नियम आ देखदे आ। हुण तुहाडा मेन चैप्टर स्टार्ट हुंदा जी। तुहाडी पहली ड्यूटी की बनदी आ भी तुहानू बॉयल ला चज नाल समझ आउणा चाहीदा। बॉयल ला पूरा समझ आऊगा। बॉयल ला दे ग्राफ भी आपां नू आउणे चाहीदे। ग्राफ हो गए, नमैरिकल हो गए। ये नहीं भी जिद्दां बुक के उपर 3-4 लाइनां ना बॉयला खत्म हो गया तो आपां भी उन्ना क खत्म करना। आपां नू A to Z करना भी बॉयला दे विच कोई चीज़ छुट्टनी नहीं चाहिए। जिस तरह साडा फस्ट ला की आ गया, हुण आपां पढ़न लगे आ गैस लॉस। कुछ स्पैशल रूल्स ने गैस लॉस। इहदे विच साडा फस्ट गैस ला किहड़ा आ गया? बॉयल्स ला। बॉयल्स ला जदों भी तुसीं स्टार्ट करना ना, तुसीं इत्थे की लिखना वा, इत्थे आपां एक चीज़ तिन्नां विचों एक कॉन्सटेंट करीदा ही, प्रैशर, वॉल्यूम ते टैंपरेचर। तुसीं कह देना टैंपरेचर इत्थे की हैगा कॉन्सटेंट। टैंपरेचर हैगा कॉन्सटेंट ते किन्ने किहदे नाल वेरी करना? प्रैशर ने। प्रैशर इनवर्सली प्रपोर्शनल हुंदा किहदे? वॉल्यूम दे। मैं तुहानू हुणे दस के हटिया भी 3 कंडीशन तुसीं दिमाग च रखो, प्रैशर, टैंपरेचर ते वॉल्यूम। तिन्नां दे विचों एक नूं की करना आपां कॉन्सटेंट ते दूजे दोआं नूं वेरी कराउणा। जेकर तापमान कॉन्सटेंट होगा, बॉयल ला दे विच टैंपरेचर नूं कॉन्सटेंट रखीदा। किहड़ी चीज़ किहदे नाल वेरी करदी? प्रैशर वेरी करदा जे वॉल्यूम दे नाल। इत्थे आपां कह सकते हैं जिद्दां इहनूं पूरा आपां स्टेट किद्दां करना वा, आ ते आपां दिमाग च बिठाइए पूरा। आपां कहना वा इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस when temperature is constant, then pressure of a gas is inversely proportional to volume of a gas। याद रख लियो, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का मतलब की आ किनू कॉन्सटेंट कीता? नंबर ऑफ मोल। छोटे n ना डिनोट करी दे, नंबर ऑफ मोल कॉन्सटेंट हो गए। फिर टैंपरेचर भी की आ कॉन्सटेंट। प्रैशर, वॉल्यूम ते टैंपरेचर चो एक नू कॉन्सटेंट रखो, दूजे दो एक दूजे नाल वेरी करनगे। ते आ लाइन हर ला दे विच लिखनी इन आ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ये तो अपने आप क्लीयर हो जाना भी नंबर ऑफ मोल्स की आपां रखे ने कॉन्सटेंट। टैंपरेचर की हो, जदों उन्होंने कहा तापमान बदलूगा नहीं,
कॉन्स्टेंट का मतलब हुंदा वा भी जे तापमान 100 डिग्री ते आ ते 100 डिग्री ते रहूगा, 90 डिग्री ते आ ते 90 डिग्री ते रहूगा। कहंदे आ भी जदों तापमान बदलूगा नहीं प्रैशर ते वॉल्यूम ये इनवर्सली प्रपोर्शनल का मतलब की हुंदा। इत्थे देखियो जिद्दां अपने कोल एक कंटेनर आ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹਵਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਪਦੀ ਪਈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪਦੇ ਪਏ ਆ 2 ATM ਨਾਲ। ATM ਕਿਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਾਸ ਦੇ weight ਦੇ ਨਿਊਟਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ATM ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਸਕਲ, ਟੌਰ। पर फिलहाल अपने दिमाग च कौन बैठ जे ATM। आपां इनू नापदे पए 2 ATM नाल ते इस गैस का वॉल्यूम जिहड़ा इह किन्ना हैगा वा 2 लीटर। 2 लीटर आ। जेकर आपां इनू नपांगे 1 ATM नाल, देखो पहलों 2 ATM नाल, जेकर आपां इनू पुश करदे आ किन्ने ATM दे नाल आपां इनू नापदे पए आ। मान लो आपां 3 ATM करता, 2 ਤੋਂ 3 करता तो यदा वॉल्यूम की हो जाना 1 लीटर। जिद्दां जिद्दां चीज़ नूं नप्पी जाओगे, जिस तरह मान लो इत्थे आपां प्रैशर अपने हत्थां दे विच गैसिस आ, हुण इहदे इत्थे किन्ना वॉल्यूम है इहदा मान लैने आ 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपां इहनूं होर नपता तो वॉल्यूम घट गया, होर नपता तो वॉल्यूम होर घट गया। जिन्ना ज़्यादा प्रैशर लाओगे उन्ना वॉल्यूम घटूगा। वॉल्यूम ते प्रैशर एक दूजे दे इनवर्सली प्रपोर्शनल हुंदे। जिन्ना ज़्यादा प्रैशर अप्लाई करोगे उन्ना वॉल्यूम की हो जूगा घट। याद रखनी आ कंडीशन पूरी दिमाग च बिठाओ। हुण देखो ये तो हैगा ही बॉयल अपना हो गया। हुण आपां बॉयल ला इक्वेशन तैयार करनी, फिर क्योंकि वो इक्वेशन ने साडे ग्राफ सॉल्व करन च मदद करनी आ। फिर आपां ग्राफ बनावांगे। सॉरी आपां किहड़ी इक्वेशन तैयार कर लगे आ बॉयल आ इक्वेशन। एक तो उहदे तो ग्राफ बनाने, एक उहदे तो नमैरिकल भी आपां सॉल्व करने ने। वेखियो बॉयल आ इक्वेशन किद्दां तैयार करांगे। वीडियो पॉज करके ये चीज़ां नोट करी जाओ। हुण आपां करांगे बॉयल आ इक्वेशन। बॉयल ला दे अंडर साडी हुण बननी आ बॉयल्स ला इक्वेशन। जिद्दां हुणे आपां क्या ही वेखियो, आपां क्या ही प्रैशर ऑफ आ गैस इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ आ गैस। आ चीज़ आपां कही ही। हुण देखो इनवर्सली प्रपोर्शनल का जे मैं साइन हटावां तो की आऊगा इज इक्वल टू कॉन्सटेंट लाउणा K 1/V आ गया। V नूं इधर लै जो P आ डिवाइड होण दिया इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाऊगा। PV इज इक्वल टू K की आ एक कॉन्सटेंट। प्रपोर्शनल का साइन हटा के आपां कॉन्सटेंट लाईदा ना, कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी हुंदा। हुण तुसीं कह सकदे PV किहदे बराबर आ कॉन्सटेंट दे बराबर। इन्नी चीज़ तो चलो सानू पता लगदी, पर जेकर एक तो वध गैसिस होण, फस्ट गैस है कोई फस्ट गैस आ उहदे लई आपां इत्थे 1 पा दईए, उहदा प्रैशर P1 क्योंकि आ तो सारियां ते अप्लाई हुंदा। हुण आपां 2 गैसां नूं कंपेयर करदे पए, एक दा प्रैशर P1 एक दा वॉल्यूम V1। ये किहदे बराबर कॉन्सटेंट दे हो सकदा। क्वेश्चन दे विच 2 गैसिस दित्तियां होण, कोई सैकेंड गैस भी होवे। हुण इत्थे 2 पा दिन्ने, प्रैशर P2 वॉल्यूम V2। ये किहदे बराबर आ कॉन्सटेंट दे। हुण आ वेखियो आ भी कॉन्सटेंट के बराबर, आ भी कॉन्सटेंट के बराबर। फिर आ वैल्यू इत्थे भर दिन्ने P1 V1 उस तरह कॉन्सटेंट की जगह, क्योंकि ये तो बदल नहीं ना दिया। जिन्ना इहदा मान लो 10 आंसर आ गया, इहदा भी 10 आंसर आ गया। फिर इनू इत्थे पुट कर दिन्ने P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये साडी किहड़ी इक्वेशन बनी बॉयल ला इक्वेशन। जां होर इनू आपां होर किसी फॉर्म च भी लिख सकते P1 दे थल्ले किनू लै आओ P2 नू ते V2 दे थल्ले किनू लै आओ V1 नू।
ਵੀ ਆ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਹਿਣੇ, याद रख लियो 1 ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ 1 ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ P1 P2 V1 V2 ਹੋਣਾ, ਆ P1 ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, P2 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, V2 ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ V1 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ? ਬੋਇਲ ਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। फिर देख लो किद्दां बनाया, आ चीज़ तो तुहानूं मैं समझा चुकिया ही, प्रैशर ते वॉल्यूम एक दूजे दे इनवर्सली प्रपोर्शनल हुंदा। फिर मैं तुहानूं कहा ही भी प्रपोर्शनल का साइन हटा के कोई कॉन्सटेंट इत्थे ABC जो मर्जी लिखो, मैं K लिखता, कॉन्सटेंट टर्म ही है, भावें X लिख लो, जो मर्जी लिख लो, डिवाइड होण दिया वॉल्यूम इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, K दे बराबर आ गया, तो K एक कॉन्सटेंट आ। फिर आपां क्या पहली गैस लिए आपां 1 1 पा लेने, दूजी लिए 2 2 पा लेने, दोवें कॉन्सटेंट है, तो इन्हां दोनों नूं आपस च बराबर लिख देना। तो साडे कोल होर भी जिंदा P3 V3 इत्थे लिख देना, P3 V3 3 बराबर लिख देनियां है, ठीक है। इदां ही इन्हें चली जाना। हजे अपना पहला ला स्टार्ट होया वा अज बॉयल ला। बॉयल ला आपां पढ़िया, बॉयल ला इक्वेशन पढ़ी आपां, आ इक्वेशन तैयार हो गई। हुण आपां इहदे ग्राफ बना के देखदे, ग्राफ आपां बनाउने आ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपां इहदी करदे आ। देखियो साडे कोल एक इक्वेशन आ P, शुरुआत तो इदां ही हुंदी ना, प्रैशर वॉल्यूम दे इनवर्सली प्रपोर्शनल हुंदा। फिर आपां प्रपोर्शनल दा साइन हटा के की लिख दिंदे हुन्ने K। एक इक्वेशन ते हो गई आड़ी, ठीक है। हुण आपां ग्राफ किदां बनाईदा बच्चों, याद रख लियो फिजिक्स दे विच काफ़ी केसिस दे विच जदों ही ग्राफ बनाने ना, आपां एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ना कंपेयर करीदा। वो इक्वेशन हुंदी y = mx + c। मैथ विच देखी होनी तुसीं, जे नहीं पता तो तुसीं जदों भी ग्राफिकल हैडिंग आवे, जिहड़ा रिजल्ट बनिया इनू किहदे नाल कंपेयर करो, y = mx + c। इस तो पता की लगदा, y एक्सिस ते आउणा प्रैशर। फिर आपां जदों ग्राफ बनावांगे, आ साडा y एक्सिस आ, y एक्सिस ते किहड़ी चीज़ आउणी आ? प्रैशर। प्रैशर इनू P नाल डिनोट कीता। हुण आ वेखियो M नू दसदा की हुंदा, x एक्सिस ते की आउणा 1 वॉल्यूम। आ हो गया x एक्सिस, इहदे ते की आउणा 1 वॉल्यूम, ते M जिहड़ा वा M हैगा वा स्लोप। स्लोप वेख लिया करो, जे ते पॉजिटिव आ, पॉजिटिव आ फिर तुसीं सीधी लाइन ड्रा करनी हुंदी इस तरह, जे नैगेटिव आ तो उपरों थल्ले नूं लाइन ड्रा करी दी। फिर आ स्लोप हो गया M के दे बराबर आ गया K दे। ये की आ साडा स्लोप। स्लोप नूं ढलान कहीदा, ढलान जी है ना। स्लोप आ गया साडा M = K। इत्थे तुसीं थीटा भी लिख सकदे, ते आ C हुंदा y इंटरसैप्ट, इनू कहीदा y इंटरसैप्ट। तो इत्थे वेखो, इत्थे है ही नहीं y इंटरसैप्ट 0, तो फिर इहदा कोई ग्राफ च रोल नहीं हैगा। ये साडा पहली इक्वेशन का ग्राफ बन गया। किहदे विच आपां ग्राफ बनाया जे? प्रैशर दे विच ते 1 वॉल्यूम दे विच। हुण मैं इत्थे ही तुहानूं एक क्वेश्चन दिना वा, फिर दूजे ग्राफ ते आउने। आ साडा पहला ग्राफ बनिया जे, याद रख लियो। ते नाल ही आपां इसे ग्राफ नाल रिलेटेड एक क्वेश्चन करके वेने आ, इनू तार लियो। देखियो क्वेश्चन की होगा, K की ही अपना कॉन्सटेंट ना। मैं इत्थे क्वेश्चन च मुश्किल ना वे दस दिना। तो कॉन्सटेंट चीज़ किहड़ी आपां लई ही? टैंपरेचर। फिर आ लाइन किनू रिप्रजेंट करदी जे? टैंपरेचर नूं। बॉयल ला दे विच किहड़ी चीज़ कॉन्सटेंट हुंदी? टैंपरेचर। हुण तुहानूं भुल्ले ना, मैं एक तुहानूं ट्रिक दस दिना वा। वैसे वो ये ना कोई कंपैरिजन नहीं आप कर सकते। ए बॉयल हो रहा तो BOIL हो रहा। इत्थे मैं नोट दे विच दस दिना BOIL बॉयल हुंदा ना उबलना,
पर याद रखियो इत्थे आ बॉयल ते आ बॉयल का जमीन असमान का फर्क आ, ये सेम नहीं है, बस तुहानूं याद रहे इस करके मैं थोड़ा कि ट्रिक दस्सण लगा। जिद्दां जदों चीज़ उबलदी आ ते उहदा तापमान नहीं बदलदा, पानी ने 100 डिग्री ते एग्जैक्ट उबलना हुंदा वा, वो 100 तो जिन्ना जदों वो बॉयल होण डै पिया उदों दा टैंपरेचर एक जगह ते रुक जांदा, क्योंकि उहदी स्टेट बदलण दी हुंदी। ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਕਿਚ ਬਦਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੈਸ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਬੋਇਲ ਦੀ ਸੈਂਸ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਨਾ ਲਿਓ ਵੀ ਬੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਬੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ लिक्विड किच बदलता गैसिस विच, पर उस पॉइंट ते किहड़ी चीज़ कॉन्स्टेंट हुंदी, टैंपरेचर। ठीक है, जे नहीं आ चीज़ रखनी याद रहन दिओ। क्वेश्चन देखियो पहले ग्राफ नाल रिलेटेड, इन्नी क चीज़ मैं बनी रहन दिना, काम आऊगी। इन्नी क चीज़ नाल रिलेटेड मैं क्वेश्चन दिना एक। क्वेश्चन जिदा अपने कोल एक एक्सिस ते आपां लिख दिए प्रैशर, दूसरे एक्सिस ते आपां लिख दिन्ने आ वॉल्यूम। वन बाय वॉल्यूम, इत्थे टैंपरेचर T1 T2 ते T3, 3 टैंपरेचर इत्थे मैं लिख दिते ते तुहानूं मैं क्वेश्चन दे दिना, राइट ऑर्डर्स ऑफ T1 T2 एंड T3। राइट ऑर्डर्स ऑफ T1 T2 एंड T3, तिन्नां दा आपां ऑर्डर लिखना। हुण इत्थे आपां देखिए किद्दां इहनूं कर सकदे। हुण सानूं पता वा M की आ स्लोप, स्लोप की आ टैंपरेचर ही आ इत्थे। हुण टैंपरेचर T1 ज़्यादा वा, T2 ज़्यादा कि T3 ज़्यादा, स्लोप की आ पॉजिटिव। जे स्लोप ज़्यादा तो स्लोप जिन्हों रिप्रजेंट करता पिया वो टर्म भी ज़्यादा होगी। स्लोप पॉजिटिव है ना, याद रख लियो, जे स्लोप ज़्यादा, स्लोप जिन्हों रिप्रजेंट करन दिया वो टर्म भी ज़्यादा होगी। हुण इत्थे देखो एक आ ढलान आ, मैं जिदा जे पंजाबी विच कहां भी आ चढ़ाई जी आ ढलान आ ढलान ज़्यादा कि सब तो ज़्यादा जे वेखीए तो आ चीज़ बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा किद्दां पता लगदी, तुसीं एंगल तो भी नोट कर सकदे। इहदा एंगल वेखो सब तो ज़्यादा, अगले दा एंगल घट आ, उस तो बाद होर घट आ। इनू θ1 कह दिना, इनू θ2 कह दिना ते इनू θ3 कह दिना। सब तो ज़्यादा एंगल θ1, फिर θ2 ते θ3। ते जे एंगल ज़्यादा तो स्लोप का एक होर फार्मूला हुंदा tan थीटा, M किहदे बराबर हुंदा tan थीटा दे। जे एंगल ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा तो क्वांटिटी ज़्यादा। फिर आपां कहांगे टैंपरेचर T1 ज़्यादा, T2 घट आ ते T3 होर घट आ। ठीक है, तुहानूं इदां दा भी क्वेश्चन आ सकदा वा भी टैंपरेचर्स का ऑर्डर लिखो। तुसीं बस ये दिमाग च रखो भी M का मतलब स्लोप, तो M के सामने लिखिया K, तो K किनू रिप्रजेंट करता पिया, टैंपरेचर नूं। तो जे M दे नाल पॉजिटिव साइन है, M K ही आ, तो फिर आपां याद रखना स्लोप ज़्यादा, तो जिहड़ी चीज़ नूं रिप्रजेंट करता पिया स्लोप, वो क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। नैक्सट देखते हैं आपां, दूसरा ग्राफ बना के देखते हैं। दूसरा ग्राफ किहदे विच आपां बनाउणा वा, जिद्दां हुणे फिर देखियो आपां की कहने ही, प्रैशर इनवर्सली प्रपोर्शनल आ वॉल्यूम दी। आ चीज़ आपां पढ़ी। हुण आपां की करदे आ, इनवर्सली प्रपोर्शनल दा ग्राफ बनाउने। इत्थे मैं K नहीं लिखदा, कुछ इस तरह दा नहीं, एक P दे विच ते एक V दे विच। अगे आपां P ते 1/V च बनाए, हुण आपां एक P च ग्राफ बनावांगे, एक किहदे च ग्राफ बनावांगे, V च। इन्हां दोनां च ग्राफ बनाउणा जी आपां।
ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1/v ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ p ਤੇ v ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ? ਇਨਵਰਸਲੀ। ਵੇਖੋ ਓਵਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਘਟਣੀ, ਜੇ ਆ ਵਧਿਆ ਤੇ ਆ ਘਟਣਾ, ਤੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਵ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਵ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਰਿਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਰਿਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਰਿਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਨੀਡ ਜੇ ਲੱਗੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੀਸਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ p ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1/v। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਦੀ, ਆਪਾਂ ਬੋਇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਣ ਡੈ ਪਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੋਇਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਤੀਜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਿਓ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਤਾ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ k ਪਾਤਾ। ਆ v ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, pv ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k। pv ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ? ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੇ। pv ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂ pv, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ, ਚਲੋ ਵੋਲੀਅਮ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਾਂ, ਤੇ pv ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੇ। ਜਦੋਂ p ਦੇ ਨਾਲ v ਜੋੜਤਾ ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਕੌਂਸਟੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਈਦੀ। pv ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਆ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ? ਪੈਰਲਲ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੇਠਾਂ ਵਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਦਈਦੇ, ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇੱਥੇ v ਕਿਉਂ ਲਿਖਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ। ਤੇ 3 ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ। 3 ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ pv v ਚ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆ pv ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ pv ਲਿਖ ਸਕਦਾ, p ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ pv ਇਕੱਠਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੌਂਸਟੈਂਟਲੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੋਇਲ ਲਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਲਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ 9th ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾਇਆ ਗੈਸ ਲਾਸ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਬੋਇਲਾ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਾਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੋਇਲਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰਿਓ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਲਿਖੋਗੇ ਓਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਓਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।